हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? आज है 20 मार्च 2024। आज का एडिटोरियल है एक्सप्रेस व्यू ऑन अटैक ऑन फॉरेन स्टूडेंट इन गुजरात, मोबिलिटिंग mob and campus. So as the world is becoming increasingly interconnected, there is the National Education Policy 2020. It is the responsibility of institutes of higher education to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure, and sustainable societies. The attack on five foreign students on Saturday night at Gujarat University in Ahmedabad by a mob reportedly for offering namaz during Ramjan. रमजान के समय जब नमाज अदा कर रहे थे तभी अटैक हुआ है। किसके द्वारा? मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा। ठीक है। Lies in the face of that commitment and promise. In videos of incident, about 25 young men can be seen assaulting the students, two of whom were hospitalized. तो जो है हॉस्पिटल रेफर। The response from the authorities has been two-tone. First, dealing with the crime itself, the breach of law and order on campus. Two people have been arrested, and the Ministry of External Affairs has issued a statement saying it is in touch with the Gujarat government on the matter. The second response, unfortunately, appears to lay blame on the victims. In the immediate aftermath of in the immediate aftermath of the attack, Vice Chancellor Nirja Gupta has assured the foreign students from Sri Lanka, Turkmenistan, Afghanistan, and African nations that they will be moved to a different hostel. ये बोला गया that this has become necessary for their safety is disturbing, but the VC Vice Chancellor's words also appear to rule out the possibility of an introspection introspection on how and why the students were attacked. They are foreign students, and when they go to foreign countries, there is a need to be a culturally sensitive. From this incident, it has emerged that there is still a need for cultural orientation. From this incident, it has emerged that there is still a need for cultural orientation. The onus of being culturally sensitive, especially in terms of religious and cultural practices, has been put on the foreign students. It would seem in this framing that the mob that attacked them has been let off far too lightly. The best universities in the world are spaces that first and foremost foster freedom. The quality of education they offer depends crucially on the liberty of thought and freedom. Right? The best university in the world are spaces that first and foremost foster freedom. The quality of education they offer depends crucially on the liberty of thought and freedom of debate that they play host to. The mob and its violence an end to bring an end to the free exchange of ideas and by extensions the idea of the university. Gujarat University would do well to heed the advice of NEP National Education Policy 2020 to ensure scientific temper,
liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice. It is necessary to nurture a campus that has full equity and inclusion as the uh, cornerstone of all educational decisions. मॉब मतलब होता है भीड़, मॉब लिंचिंग होता है ना, गैंग हो गया, क्राउड हो गया, ऑडे, टोंग, मास यानी भीड़। प्रोमोटर मतलब समर्थक होगा, सपोर्टर, एडवोकेट, प्रोपोनेंट, चैंपियन, बैकर। प्रोमोटर मतलब होता है टॉलरेंट, टॉलरेंट होगा ओपन माइंडेड, मतलब बर्दाश्त करने वाला, अच्छा, सहिष्णु, पेशेंट रखने वाला, पेशेंट, या फिर फॉरबियरिंग, या फिर इंडल्जेंट, इंडल्जेंट, lenient, open-minded, tolerant, lenient, indulgent, forbearing, patient, patent, tolerant, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल टिकाऊ है, टिकाऊ क्या होता है, किसी का विशेषता होता है यानी एडजेक्टिव है, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब कि फिर से यूज करने वाला, मेंटेनेबल मेंटेन करने वाला, सपोर्टेबल सपोर्टेबल, इको फ्रेंडली, ठीक है। रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली वर्ब होगा, कथित तौर पर, वर्ब के विशेषता बता सकता है रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली वैसे उसने ऐसा काम किया, तो कथित तौर, एलिजिडली, एलिज लगाया, आरोप, सपोजिडली, सपोज, परपोर्टेडली, रिमोड, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, टाई इन द फेस ऑफ, तेज है, टू गो अगेंस्ट और अपोज ए जनरली एक्सेप्टेड आइडिया और प्रिंसिपल, आमतौर पर स्वीकृत विचार या सिद्धांत के खिलाफ जाना, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस रहता तो स्वीकार करता, लेकिन फेस ऑफ कर दिया यानी कि हो जाएगा अस्वीकार करना, तो कथित सिद्धांत जो है उसको उसके खिलाफ जाना, फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी कि चेहरे के पीछे उड़ना। कमिटमेंट, कमिटमेंट नाउन है, प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, ठीक है, डिवोशन, एलिजियंस, लॉयल्टी, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट। असॉल्ट, असॉल्ट क्या होगा, अटैक, अटैक, स्ट्राइक, असेल, बैटर, एग्रेस, हमला करना, अटैक तो ठीक है, स्ट्राइक ठीक है, असाइल याद रख, और बैटर, टू टोन यानी कि डबल माइंडेड, हैविंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कलर्स, एडजेक्टिव है, इसका ही बताएगा टू टोन। डील विथ, फ्रेजल वर्ब होगा, डील विथ यानी कि निपट करना, हैंडल करना, मैनेज करना, टैकल करना, एड्रेस करना, कोप विथ निपटना, याद रखना, कोप विथ या डील। ब्रिज मतलब कि उल्लंघन करना, बोलता है ना क्या कहते हैं, रूल ब्रिज किया तो उल्लंघन किया, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन या फिर ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन याद रखना है, इन्फ्रैक्शन याद रखना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, उल्लंघन करना, ब्रीच। ले ब्लेम ऑन, ले ब्लेम ऑन तेज होगा, टू एट्रीब्यूट फॉल्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और समथिंग, दोषारोपण करना, ले ब्लेम ऑन, ब्लेम लगा रहा है, ठीक है, और किसी के ऊपर लगाना यानी कि दोषारोपण करना, ठीक है। विक्टिम क्या होगा, पीड़ित, सफरर, कैजुअलिटी, इंज्योर्ड, पार्टी, लूजर या फिर प्रे, नाउन है विक्टिम। इन द आफ्टर मैथ ऑफ, इन द आफ्टर मैथ ऑफ, इसका हिंदी होगा किसी घटना के बाद या विशेष रूप से एक नकारात्मक या महत्वपूर्ण घटना, इन द आफ्टर मैथ, हाँ, मैथ के बाद यानी कि घटना के बाद, इन द आफ्टर मैथ ऑफ।
फ्लोइंग एन इवेंट स्पेशली ए नेगेटिव और सिग्निफिकेंट वन। किसी घटना के बाद नकारात्मक घटना होना चाहिए इन द आफ्टर मैथ ऑफ। अश्योर, अश्योर क्या है, वर्ब है। ग्रांटी, प्रोमिस, सर्टिफाई, इंश्योर, कन्फर्म, आश्वासन देना। अश्योर, अश्योर क्या होगा, तो गारंटी हो गया, प्रोमिस कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, इंश्योर कर दिया, कंफर्म कर दिया, आश्वासन देते हैं, इंश्योर। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होगा, सेल्फ एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, सॉल सर्चिंग या सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। कल्चरल ओरिएंटेशन, नाउन है, कल्चरल ओरिएंटेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू ए न्यू कल्चर, कल्चरल ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। सांस्कृतिक दिशा निर्देशन, ओनस, ओनस क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, बर्डन या लेबिलिटी। लेबिलिटी तो याद है, दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद है, लेकिन ड्यूटी भी याद है, याद रखना है। ओनस, ओनस, अरे यार, ओनस, बर्डन, ये बहुत, ये हो जाएगा बर्डन और एक हो जाएगा ऑब्लिगेशन, तो याद। इन टर्म्स ऑफ, यानी कि फ्रेज है विथ रिगार्ड टू या फिर रिगार्डिंग या कंसर्निंग या इन रिलेशन टू के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ। लेफ्ट ऑफ, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा यहाँ पर एक्सक्यूज, लेफ्ट, लेट ऑफ यानी छोड़ देना, पार्डन, एक्विट, एब्सोल्व या एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट एग्जिट कर जाना किसी मामला से, एक्सक्यूज कर देना, एग्जिट, इसमें भी लगा हुआ है। पार्डन मैंने माफ कर देना यानी छोड़ो यार। अब सोल्व, अब सोल्व, सोल्व लगा हुआ है, खत्म कर दिया, अब मैंने छोड़ दिया, एक्विट कर गया। लेट ऑफ कर दिया यानी बंद कर दिया, यानी माफ कर दिया। चलो, फोस्टर, फोस्टर क्या होगा, ये इनकरेज, प्रमोट, नर्चर, कल्टीवेट, डेवलप, प्रोत्साहित करना को कहेंगे फोस्टर, डेवलप विकसित, प्रोत्साहित करना, ठीक है। कल्टीवेट, कल्टीवेट प्रोत्साहित करना, अच्छा। नर्चर, प्रोत्साहित करना, नर्चर। प्रमोट, प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, फोस्टर कर रहा है। लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमी, राइट, फ्री विल। प्ले होस्ट टू, तेज है, टू अकोमोडेट, इंटरटेन, वेलकम, रिसीव, प्रोवाइड फूड, अतिथियों या आयोजनों को आवास या मनोरंजन प्रदान करना। प्ले होस्ट टू। ब्रिंग एन एंड टू, तेज है, टर्मिनेट, कंक्लूड, फिनिश, सीज, हॉल्ट, समाप्त करना, ब्रिंग एन एंड टू, टर्मिनेट कर दिया, कंक्लूड कर दिया। हम कंक्लूड का उल्टा मीनिंग समझ जाते हैं, कंक्लूड मतलब होगा समाप्त करना, फिनिश कर दिया, सीज कर दिया, हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। ब्रिंग एन एंड टू, एंड पे ले आया यानी समाप्त कर दिया, कंक्लूड याद रखना है। बाय एक्सटेंशन, कंसिक्वेंटली या फिर एज ए रिजल्ट, देयरफॉर, दस या हेंस, परिणाम स्वरूप या अतिरिक्त रूप से, परिणाम स्वरूप, बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, कंसिक्वेंटली। हीड, हीड वर्ब होगा पे अटेंशन टू या फिर टेक नोटिस ऑफ, लिसन टू या कंसाइडर या रिगार्ड, रिगार्ड, कंसाइडर, लिसन टू, टेक नोटिस ऑफ या फिर पे अटेंशन टू, फिर ध्यान देना। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर यानी कि द एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग, वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक टेम्पर, हाँ।
टेम्पर मतलब दिमाग में पारा चढ़ गया, साइंटिफिक है यानी कि वैज्ञानिक। यह है प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म क्या होगा? तो बहुलवाद, डाइवर्सिटी, बहुत, मल्टीप्लिसिटी, वेराइटी, को एक्सिस्टेंस, को एक्सिस्टेंस या फिर इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, को एक्सिस्टेंस। नर्चर क्या होगा? तो कल्टीवेट करना, चेरिश करना, इनकरेज करना, फॉस्टर करना, डेवलप करना, विकसित करना। नर्चर ये प्रोत्साहन देना भी हम पढ़ें। फॉस्टर, नर्चर। नर्चर तो नहीं था, लेकिन किसी पोस्टर में नर्चर था शायद। देखिए नर्चर है, प्रोत्साहित करना, इसका विकसित भी करना होगा। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी क्या होगा? यानी कि समानता, फेयरनेस, जस्टिस, इम्पार्शियली, फिर इवन हैंडेडनेस, इवन हैंडेडनेस या इक्वलिटी। एक मतलब होगा, ये हो गया कॉर्नर, कॉर्नर स्टोन यानी आधार, फाउंडेशन, बेसिक, बेसिस, की स्टोन, हार्ड रॉक, बेड रॉक, सॉरी, अंडर पिनिंग, अंडर पिनिंग, पाइनिंग। ये हो गया इसका आज का मतलब। अब थोड़ा बहुत अगर फिर से पढ़ते हो कल तो इसको साफ कर लेते हैं पहले। एक्सप्रेस व्यू, अटैक ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स इन गुजरात, mob on campus. As the world is becoming increasingly interconnected, said the National Education Policy 2020, it is the responsibility of Institute of Higher Education to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure, and sustainable society. The attack on foreign students on Saturday night at Gujarat University in Ahmedabad by a mob, भीड़ के द्वारा अटैक किया गया है सैटरडे नाइट को गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के ऊपर, फॉरेन स्टूडेंट के ऊपर। रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब यह सूचना मिला है, यानी कि कथित तौर पर, यहाँ पर कथित तौर पर हो जाएगा। ठीक है। तो कथित तौर पर कहा गया, कथित तौर पर फॉर ऑफरिंग नमाज ड्यूरिंग रमजान, लाइज इन द फेस ऑफ, लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब होगा कि मेन जो नियम है उसके विरुद्ध जा करके, दैट कमिटमेंट एंड प्रोमिस, जो कमिटमेंट किया गया था और जो प्रोमिस के वादा किया गया था उसके विरुद्ध जा करके यह काम हुआ। इन द वीडियोज ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के वीडियोज में अबाउट 25 यंग मैन कैन बी सीन, 25 यंग मैन देखे जा सकते हैं असॉल्टिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट पर हमला करते हुए, टू ऑफ होम जिसमें से दो हॉस्पिटलाइज्ड है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स हैज बीन टू टोन, दो द्विभाषिक मतलब देखा गया है। फर्स्ट, डीलिंग विथ द क्राइम इटसेल्फ, द ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन कैंपस, यानी कि कैंपस में जो कानून उल्लंघन हुआ है तो डील कैसे करना है। एंड टू पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज issued a statement saying it is in touch with the Gujarat government on the matter.
इस मैटर पर हम गुजरात गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं और जो 2 पीपल है वो अरेस्ट कर लिया गया है। जनरल अफेयर का ये स्टेटमेंट है। द सेकेंड रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली appears to lay blame on the victim। lay blame lay blame on lay blame on मतलब होता है शायद दोषारोपण करना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा क्या, appears to lay blame on the victim। विक्टिम्स के ऊपर प्रत्यारोपण कर रहा है, यानी कि दोष लगा रहता है। इन द immediate aftermath of the attack। immediate aftermath of in the immediate aftermath of यानी कि पूरे झगड़े के बाद, लड़ाई इस घटना के बाद, पर इन द आफ्टरमेथ ऑफ यानी कि महत्वपूर्ण घटना जो था या नकारात्मक घटना के बाद मतलब हो जाएगा, ठीक है। इन द इमीडिएट आफ्टरमेथ ऑफ द अटैक वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता हैज अस्योर्ड ने ये वादा किया द फॉरेन स्टूडेंट से फ्रॉम श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड अफ्रीकन नेशंस के दे दैट दे विल बी मूव्ड टू ए डिफरेंट हॉस्टल। उन लोगों को अलग हॉस्टल में रखा जाएगा। दैट दिस हैज बिकम नेसेसरी फॉर दियर सेफ्टी इज डिस्टर्बिंग बट दे द वाइस चांसलर वर्स also appear to rule out the possibility of an introspection on how and why the students were attacked। लेकिन वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि ये क्यों हमला हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, और इसके ऊपर हम इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म परीक्षण करने की जरूरी है। दे आर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड व्हेन दे गो टू फॉरेन countries there is a need to be culturally sensitive। From this incident it has emerged that there is still a need for cultural orientation। यानी कि फ्रॉम दिस इंसिडेंट, ठीक है, इस घटना के से इट हैज इमर्ज दैट, इमर्ज मतलब होता है शायद, इमर्ज यानी कि सोचना शायद हो सकता है, ठीक है। हाँ, इमर्ज दैट इसका मतलब यहाँ पर यही होगा। फ्रॉम द दिस इंसिडेंट इट हैज इमर्ज दैट देयर इज स्टिल ए नीड, यह जरूरी है कि कल्चरल ओरिएंटेशन होते रहे, यानी कि सांस्कृतिक जो है विकास मिलाप जो होते रहे। द ऑनर्स ऑफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑनर्स का मतलब, ऑनर्स कहाँ है, ऑनर्स मतलब दायित्व है। द ऑनर्स ऑफ बीइंग कल्चरली सेंसिटिव स्पेशली इन टर्म्स ऑफ का मतलब हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मतलब संदर्भ में, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेज हैज बीन पुट ऑन द फॉरेन स्टूडेंट। It would seem in this framing that the mob that attacked them has been let off। let off मतलब होता है छोड़ना, भूल जाना, यानी कि खत्म करो। let off का मतलब यही होगा शायद। let off मतलब माफ करना, ठीक है। तो let off has been let off for of far too lightly। The best universities in the world are spaces that first and foremost foster freedom। The quality of education they offer depends crucially on the liberty of thought and freedom of debate that they play host to। The mob and its violence bring an end to the free exchange of ideas and, by extension, the idea of the university। Gujarat University would do well to heed to advice of नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। द इंश्योर साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच, लिबर्टी यानी कि झूठ कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लुरलिज्म, प्लुरलिज्म मतलब हम लोग पढ़े हैं क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा
बहुत सारा विचार, इक्वलिटी, बराबर, जस्टिस या न्याय। इट इज नेसेसरी टू नर्चर, नर्चर मतलब हम लोग पढ़े हैं देखिए, नर्चर मतलब हम लोग यहाँ पर पढ़ना, हम क्या कह सकते हैं इसको, नर्चर नर्चर प्रोत्साहित करना, अच्छा, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू नर्चर यानी प्रोत्साहित करने की जरूरत है कैंपस को, दैट हैज फुल इक्विटी, जहाँ फुल इक्विटी बराबरता है, एंड इंक्लूजन एज द कॉर्न स्टोन ऑफ द एजुकेशनल डिसीजन, यानी एजुकेशनल डिसीजन में कॉर्न स्टोन यानी कि जो बेस का पत्थर, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, ढांचा जो है, बेस मेन जो मेन मुद्दा जो है वो इक्वल है सबके लिए। यहाँ पर कॉर्न स्टोन मतलब हो जाता है फाउंडेशन, अच्छा, आधार। तो आधार जो है वो सबके लिए बराबर है, इसका मतलब ये हो गया। यानी कि पूरे सारांश में कहा जाए हिंदी में तो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर हमला हुआ है भीड़ के द्वारा, और उसमें से कुछ, जैसे कि वाइस चांसलर गुजरात के, वो कुछ बोले हैं, और लगभग 25 जो युवा है भीड़ में थे, उसमें से 2 हॉस्पिटल में चले गए हैं, और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब बताया गया। इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। समरी में क्या है, तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP कहेंगे शॉर्ट में, emphasizes the role of higher education institute in promoting peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable societies. Incident in Gujarat, 5 foreign students were attacked by a mob at Gujarat University. हाँ, इतना समझ में आया। अहमदाबाद को repeatedly offering नमाज during Ramjan. Mob assault. Mob assault. Videos show around 25 young men assaulting the students, 2 of whom were hospitalized. Authorities response. Authorities response क्या है? The 2 arrests were made, and the Ministry of External Affairs is in contact with the Gujarat government regarding this incident. यह घटना से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कनेक्टेड हैं वहाँ के वाइस चांसलर। विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग यानी कि विक्टिम के ऊपर ही अ, दोष लगाया जा रहा है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम अथॉरिटीज सीम्स टू ले सम ब्लेम ऑन द विक्टिम्स, कुछ ब्लेम जो है विक्टिम के ऊपर भी लगा रहा है, सजेस्टिंग दे शुड हैव बीन कल्चरली सेंसिटिव, और वो जो है उनका कल्चर जो है वो सेंसिटिव मुद्दा है। सेफ्टी मेजर फॉरेन, जो यहाँ पर बताया गया है कल्चरली सेंसिटिव जो है, मान चलिए नमाज अदा कर रहे होंगे रोड पर या कहीं कहीं कॉलेज वगैरह में, तो ये सब जो मुद्दा है वो सेंसिटिव है, शायद ये चलते बोला गया है उसका, यानी कि दोष लगाया जाता हो। सेफ्टी मेजर्स, क्या है सेफ्टी मेजर्स, तो फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज विल बी मूव्ड टू ए डिफरेंट हॉस्टल फॉर देयर सेफ्टी, ये सेफ्टी मेजर उठाया गया है। लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि देयर सीम्स टू बी नो इंट्रोस्पेक्शन ऑन हाउ एंड व्हाई द अटैक occurred. With this, with the focus on the foreign students' need for cultural orientation, कल्चरल ओरिएंटेशन के लिए फॉरेन स्टूडेंट जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पता करना चाहिए, आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि क्यों अटैक हुआ है। कल्चरल सेंसिटिविटी यहाँ पर अभी बताया था, तो द ऑनर्स of being culturally sensitive has been placed on the foreign students, seemingly absolving the mob. Freedom in universities. The best universities foster freedom of thought and debate, crucial for quality education. क्वालिटी एजुकेशन के लिए
यूनिवर्सिटी में फोस्टर फ्रीडम जरूरी है और जहाँ डिबेट भी जरूरी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मॉब वायलेंस, द मॉब वायलेंस undermines the free exchange of ideas and the core idea of the university। अंडरमाइनस मतलब कि खराब। एनईपी निगेटिव मतलब कि उस पर प्रभाव डालेगा। एनईपी 2020 एडवाइस, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी इज एडवाइज टू इंश्योर साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, लिबर्टी मतलब छूट यानी फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो सोचने वाला चीज़ हो जाएगा, विचार बहुत अलग अलग विचार को, इक्वलिटी बराबर, न्याय, बाई नर्चरिंग एंड इंक्लूसिव कैंपस। नर्चरिंग मतलब होता है, हम लोग गए थे अभी भूल गए फिर से, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी या नहीं, विकसित करना, नर्चर विकसित कर रहा है, ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, द यूनिवर्सिटी शुड मेक ऑल एजुकेशनल डिसीजन विथ इक्विटी एंड inclusion as the cornerstone. Contradiction to commitment. The attack contradicts the commitment to creating tolerant and inclusive societies as started in NAP 2020। The attack contradicts the commitment to creating tolerant and inclusive society as stated in NAP। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या हुआ? The incident highlights the need for a global perspective in handling cultural diversity and sensitivity. Call for action. There is a need for concerted action to prevent such incidents and promote a safe and inclusive environment for all students। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन है, what is the tone of passage regarding to attack and on foreign student at Gujarat University? तो क्या टोन है फॉरेन स्टूडेंट पे गुजरात में जो हुआ, उसके अटैक हुआ उसके ऊपर, पैसेज पैसेज का टोन क्या है? तो सिंपैथेटिक नहीं, नेचुरल नहीं, ऑप्टिमिस्टिक या इंडिग्नेंट? इंडिग्नेंट है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो पैसेज का मेन थीम क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द रोल ऑफ हायर एजुकेशन institutes in promoting peaceful and inclusive societies, the challenge of ensuring freedom and safety on university campus, the impact of mob violence on the quality of education। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पैसेज का थीम होना चाहिए, the challenge of ensuring freedom safety on university campus। ये होना चाहिए। दो मारते हैं पहले इसका, फ्रॉम द पैसे, दो आंसर ही तो बना लें। From the passage, it can be inferred that all of the following are true about the response. It can be inferred that all the following are true about the response of the authorities to the attack on foreign students, except that the authorities have arrested two individuals in connection with the breach of law. The response from the authorities appears to lay blame on the victims for not being culturally sensitive। नहीं, ये गलत है, नॉट नहीं होना चाहिए। The vice chancellor has assured the foreign student that they will be moved to a student hostel for their safety। ये सही है। The student arrested, हाँ ये भी अरेस्ट किया गया है। The Ministry of External Affairs has remained silent on the issue and has not issued any statement regarding the attack। एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कुछ नहीं बोला गया है, ये भी सही।
तो यहाँ पर कल्चरल सेंसिटिव नहीं है, ये वाला गलत होगा। तो ये हमारा आंसर। Which one of the following statement best summarize the author's opposition on the attack on foreign student? The author believes that the attack is a result of the foreign student lack of cultural sensitivity and the authorities response has been appropriate। यानी कि जो रिजल्ट हुआ, कहानी घटना हुआ, वो किसका है? तो लैक ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी। ऑथर बिलीव कर रहा है इसमें कि इसमें कल्चरल सेंसिटिविटी है और इसके वजह से ये घटना हुआ है। तो ऐसा तो कौन बोला है? गुजरात के वाइस चांसलर ने बोला है। सिर्फ भाषण अपने दो जो टोन है उसके में बोला गया था। द ऑथर इज क्रिटिकल ऑफ द अटैक and the authorities' response, highlighting the need for educational institutions to promote more peaceful, tolerant, and inclusive societies। Response highlight कर रहा है। हाँ, ये तो सही है। The author suggests that the attack is an isolated incident and does not reflect the general attitude of the society or the educational institution। ये गलत। The author focused on the legal aspect of the attack, emphasizing the importance of law and order on campus and the effectiveness of authority। ये क्या है? The author of is critical of the attack and the authority response, highlighting the need for education। ये सही है। ये ऑथर का तो मानना नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Identify whether a given statement are true or false based on the passage। पैसेज के आधार पर ये इसमें ट्रू और फॉल्स हमें पास जानना है। ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the need for a cultural orientation for foreign students to ensure their safety and integration। The passage suggests that the responsibility for preventing such attacks lies solely with the foreign students who must be more culturally sensitive। क्या बोला? The passage that the responsibility for preventing such attack, ऐसा अटैक को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए lies solely with the foreign student who must be more culturally sensitivity। who must be more culturally sensitive। फिर गलत है, वही सही है। Parts of the following sentence have been given as option। Select the option that contains an error। Ishita will playing tennis for her favorite team। क्या बोला? Parts of the following sentence have been given as option। Option that contains an error जो है उसमें हमें करना है। Ishita will playing tennis। Ishita will play tennis for her favorite team। will यहाँ पर गलत होगा। will play। Option number A। He apologized in her silently before her pushed deeper into her thoughts। क्षमा मांगा चाह। तो he apologized
इन हर पोस्ट पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि भीतरी हो गया। तो अप्लाइड इन हर, अप्लाइड विथ, अप्लाइड ऑफर, अप्लाइड टू विथ, अप्लाइड विथ, select the correctly spelled word, behavior, BHAVIOUR, BHAVIOUR, साइन VBS, VBS का साइन होगा क्लियर, मर्की, एम्बिगुअस, ओपा, OBS, OBS मतलब होगा क्लियर। इडियम, एज फोनी एज ए $3 बिल, एज फोनी एज ए $3 बिल, एज फोनी एज ए $3 bill, and is something that is attractive, something that is genuine, something that is disgusting, something that is एक एज फोनी एज ए $3 बिल, यानी कि attractive। Select the most appropriate option to fill. They are going to give me a lovely present, but I cannot guess what it will be. But I cannot give, give. They are going to give me a lovely present. They are going to give me a lovely present, but I cannot give. I will give. Check the incorrectly aspect. Important, IMPORTANT, maintenance, MINTAN, then FRI, right? MIN, maintenance, yeah, then, and important, temporary, right? MIN, maintenance, MINTAN, important, IM, eager, complete, say no, determined, flexible, famous, decisive, elevated, flexible, say no, रेवाज, cynical, about love, prolific, obvious, trusting, pessimistic. The company sent out a questionnaire to its employees to gather
gather feedback on their work, send out a person who feeds on human flesh. Larger emissions of greenhouse gases lead to higher concentration in the atmosphere, lead to higher concentration, lead to higher concentration. Larger emissions of greenhouse gases lead, is, lead to higher concentration. Is gases is lead to concentration in the atmosphere. Ramesh always blows his own trumpet. Ramesh always blows his own trumpet. Blows his own trumpet. Like himself. This does. He was on cloud nine when he got admission in the university. He was very happy and unsettled, very happy. An examination of a body after death postmortem. One of the one of the greater and more greatest one of the greatest tragedy is seeing someone. One of the greatest tragedy is seeing someone with incredible talent get damaged. Incredible talent, someone with one of the greatest tragedies is seeing someone with यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ट्रेजिडी हुआ is seeing someone with incredible talent get damaged because he or she lacks some basic skills. This book this book यहाँ पर addresses the number one reason executive said derail. यहाँ पर derail ही होना चाहिए क्योंकि आगे derail का यूज किया हुआ है, तो derail होगा derail। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस बुक remains the number of remains the number of one reason diversity। दिस बुक तीन नंबर है, दो नंबर में derail बिकॉज ही, तीन नंबर में यहाँ पर होगा दिस बुक addresses या neglect the number one reason
executive derail, and it provides extremely helpful tools to operate in a fast-paced, result-oriented environment. I am impressed to see insightful how insightful, pessimistic या cumbersome या readable या sophisticated, how insightful, sophisticated, well organized, and focused it is. It will surely help one several difficult situations. It is it will surely help one discourage. It is surely help one discourage, reject several difficult situations. Discourage. It is surely help one discourage several difficult situations. Discourage में condemn करने चले salvage condemn करना, नीचे गिराना, रिजेक्ट करना, नीचे गिराना, डिस्करेज करना, नीचे गिराना, salvage क्यों help one several savage several इसका आंसर मिला है ACDB नीचे से BDC। देखो यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर D होगा, यहाँ पर C होगा, BDC हो गया, CDDB, CDDB, ठीक है 19 तक हो गया, ADAB, ADAB, DCBC, 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 DACD, 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 DAC के बाद है मिला लेते हैं। अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मेरा सही गया था, ठीक है, ये भी सही गया, सही। और यहाँ 3 नंबर में मेरा भी गलत हो गया ना, डी आंसर होगा, डी क्यों आंसर होगा। द पैसेज states that the ministry external affairs issued a statement saying touch with the Gujarat government on the matter, which contradicts option D. The other option are supported by the passage. Authorities have arrested 2 individuals. एम कह रहा है कि दो को अरेस्ट किया गया है, ये सही है, यहाँ पर ड्रॉ होगा, ड्रॉ कर। एम बोल रहा है कि ये दो को अरेस्ट किया गया है, ये वाला सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए कहाँ गया,
एम कहा गया कि अरेस्ट किया गया है। बीम कहा गया कि चांसलर है जैसे और द स्टूडेंट ऑफ देयर सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी के लिए एश्योर किया गया। सिम कहा गया है एंड द रिस्पॉन्स अपीयर्स टू द विक्टिम्स, और डी गलत हो जाएगा। अच्छा ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पर बी ये सही गया है, ये भी सही गया है, ये भी सही गया है, ये गलत गया है। 7 नंबर, 7 इसमें क्या है, अप्लाइड इन हर के बदले अप्लाई टू हर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी प्रतिमा पे मांगते हैं तो टू का प्रयोग होता है। अप्लाई टू हर विल बी यूज्ड इंस्टेड, अच्छा यहाँ पर अप्लाई टू होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऐसे अगर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बिहेवियर, 8 का सी सही है, बिहेवियर मतलब व्यवहार। उसके बाद है 10 में, 10 का समथिंग दैट इज फेक को कहेंगे एज फनी एज ए $3 बिल। 10 में बोला गया है एज फनी एज ए $3 बिल इडियम है समथिंग दैट इज फेक यानी नकली, ये वाला हो गया ना। उसके बाद है ये गलत हो गया कैसे, दे आर गोइंग टू गिव मी ए लवली प्रेजेंट बट आई कैन नॉट गेस व्हाट इट विल बी। हाँ यार, मैं ये मतलब कि गेस नहीं कर सकता ये क्या हो सकता है। लवली उसका क्या कर सकते हैं, तो हम क्या है, गेस होना चाहिए। गेस का यूज होगा क्योंकि गेस का अर्थ होता है अनुमान लगाना या प्रश्न का क्या कर सकते हैं इसको, प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करना बिना पूरी जानकारी को। सेंटेंस में मेंशन किया गया है कि वह मुझे एक सुंदर उपहार देंगे, पर मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि वह किया क्या होगा, इसलिए गेस यहाँ सही है। जबकि गिव का अर्थ है देना, जिस्ट का अर्थ होता है सार, और गेस्ट का अर्थ होता है मेहमान, जो इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया है। 12 कब ये सही है, मेंटेनेंस, MEINTEN मेंटेनेंस, मेंटेनेंस याद रखना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हिंदी लिख लेते हैं। MEMAIN, मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा। MEAIN मेंटे, मेंटे हो गया, और ANANC मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद 13 सी कैसे गलत हो गया ये सही। डिटरमाइन मतलब हैविंग मेड ए फर्म डिसीजन एंड बीइंग रिसोल्व नॉट बी टू चेंज इट, रिसोल्यूट यानी ठान लिया हुआ। डिसिसिव, चेंज नहीं हो सकता यानी ठान लिया है, इसका मतलब क्या डिसिसिव। डिसिसिव का अर्थ मतलब होता है रिसोल्यूट यानी निर्णायक, वही डिसिसिव। 14 भी गलत चल गया नहीं। निंदा पता है सैनिकल मतलब तो ट्रस्टिंग, फुल ट्रस्टिंग, इसमें स्टिक, का बी डी है, इसमें स्टिक मतलब होगा निराशावादी, निराशावादी। ट्रस्टिंग मतलब होता है विश्वास पाना।
ओबेस मतलब होगा मोटा। मोटा। और प्रोलिफिक मतलब होगा उत्पादक। और इसका मतलब होता है निंदा। क्या हो जाएगा सही है? प्रश्नावली क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना। इन क्वेश्चन और फिर नायर। क्यू इसको लिख सकते हैं QUESTI क्वेश्चन NAIR। ठीक हो गया। वन और ठीक है। ये डी सही है। लीड टू हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है। पर राइजेज हिमसेल्फ का ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपने के। ठीक है। उसके बाद वेरी हैप्पी। 19 का भी सही हुआ। कैसे वेरी हैप्पी बहुत ऑन वहाँ 9 ठीक है साथ में आसमान में होने। उसके बाद है पोस्टमार्टम भी सही है। यहाँ पर दी ग्रेटेस्ट ये सही हुआ। कैसे हुआ एक चीज मतलब ग्रेटेस्ट का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसी विशेष प्रकार के दुखद घटना की जो किसी के अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटेस्ट सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह एक विशेष घटना को हाईलाइट कर रहा है। मोर ग्रेट और ग्रेटर का यूज तुलना में होता है और ग्रेट यहाँ उत्तम नहीं है क्योंकि हम एक विशेष प्रकार की सबसे अधिक दुखद घटना की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा, यही सोच के हमने भी मारा। और वैसे भी अगर ग्रेटर रहता तो उसके बाद यहाँ पर दैन आता है, ग्रेटर दैन। ठीक है। इतना मतलब उस समय दिमाग में आया था। और कंपेरिजन वाला तो दिमाग में आना चाहिए जरूर। उसके बाद ग्रेट होगा नहीं, और मोर ग्रेट रहता तो फिर दैन हो भी हो लगता। इसलिए हमने ग्रेटेस्ट मारा और द लगा हुआ था इसलिए ग्रेटेस्ट हमने लगा। ठीक है? हम समझ गए कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा द के पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग सी मारे कैसे। तो यहाँ पर हम लोग आगे जब पढ़ा तो यहाँ पर हमको डिटेल दिखाई दिया। यहाँ पर ऑप्शन में डिटेल दिखाई दिया और फिर इस पैसेज में एक यहाँ पर डिटेल कहीं पर दिखाई दिया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज सीइंग समवन विथ इनक्रेडिबल टैलेंट गेट। और यहाँ पर डिटेल होना चाहिए बिकॉज ही और सी लैक सम बेसिक स्किल दिस बुक। फिर यहाँ पर कुछ होगा द नंबर वन रीजन एग्जीक्यूटिव डीरेल। ये डीरेल की वजह से हमने यहाँ पर डीरेल मारा है। पहले हम लोगों ने डैमेज मारा था पर डीरेल यहाँ पर किया। तो कभी कभी पैसे जिस तरह से भी बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बायस कैसे में डीरेल होगा देखते हैं। डीरेल का यूज होगा क्योंकि डीरेल का अर्थ होता है रास्ता से भटक जाना या फिर विफल हो जाना। सेंटेंस में जिस प्रकार से यह बताया गया है कि किसी के पास प्रतिभा होते हुए भी वह अगर कुछ बेसिक स्किल में कमी पाता है तो वह विफल हो सकता है। इसलिए डीरेल्ड यहाँ सही है। जबकि अपलिफ्टेड का अर्थ होता है उत्थान, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना और चैलेंज का अर्थ होता है निर्देशित करना, जो इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। यहाँ पर डिटेल सही होगा। बोल रहा है पूरा सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज सीइंग समवन विथ इनक्रेडिबल टैलेंट गेट derailed बिकॉज ही और सी lacks सम बेसिक स्किल। कुछ कमी के कारण, स्किल कमी के कारण डिरेल हो सकता है, रास्ते से भटक सकता है। दिस बुक क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यहाँ पर एड्रेसेज होना चाहिए। ठीक है।
हम नेगलेक्ट कैसे मारे हैं, एड्रेसेज मार रहे थे। एड्रेसेज का यूज होगा क्योंकि एड्रेसेज का अर्थ होता है किसी समस्या या मुद्दे को स्पष्टता से उल्लेख करना या समाधान की दिशा में काम करना। इस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव के डिरेल होने के प्रमुख कारण को एड्रेस करता है। ठीक है, इसलिए एड्रेसेज यहाँ सही होगा। जबकि डिमेंस का अर्थ होता है अपमान करना। डिमेंस का मतलब होता है अपमान करना, अपमान। और उसके बाद फिर डिमेंस का मतलब होगा अपमान। डिवोर्स का अर्थ होता है तेजी से खाना या समाप्त कर देना, समाप्त करना। एड्रेसेज मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्टता। और नेग्लेक्ट का मतलब होगा उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। ठीक है। हम्म, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्पष्ट से बताया, तो राइट आंसर सी होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर चॉइस फिर गलत हो गया, किससे खाई। रीडेबल का यूज होगा क्योंकि रीडेबल का अर्थ आसानी से पढ़ा जा सकने वाला या सहूलत समझने में सुलभ। सेंटेंस में किताब की प्रशंसा की जा रही है, इसकी समझ में आने वाली गुणवत्ता को हाईलाइट किया जा रहा है, इससे रीडेबल सही होगा। जबकि सोफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है जटिल। अच्छा, हमने यहाँ पर उल्टा समझ लिया, जटिल। उसके बाद पेसिमिस्टिक का अर्थ होता है नकारात्मक सोच वाला, नकारात्मक, नकारात्मक सोच वाला। और कम्बरसम मतलब कि जलाना, अर्थ भारी या कठिन, भारी या कठिन। और रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य। 25 में बोला गया है सैल्वेज का यूज होगा क्योंकि सैल्वेज का अर्थ होता है मुश्किल स्थितियों में किसी चीज़ को बचाना या सुधारना। ये सही चल गया, सही चल गया। कंडेम मतलब कि खराब स्थिति में करना। और सेंटेंस में मेंशन किया गया है कि किताब किसी की मदद करेगी, इसलिए सही होगा क्योंकि कंडेम का अर्थ होता है आलोचना करना। हाँ, आलोचना, आलोचना करना। और रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार, अस्वीकार। और एक डिस्करेज का अर्थ होता है हिम्मत हारना। सही नहीं है, ठीक है, तो सैल्वेज मतलब कि सही। और कुछ तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये था एडिटोरियल। आपको कैसा लगा आप भी हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल का एडिटोरियल में।